بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بھائی، میری بہنیں، میں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج پشاور میں جو قرآن دازی ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، میری تھوڑی سی گزارش ہے، میرے سبھی بھائی، ہزاروں لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بھیج دیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اسی کے صدقے بھی کچھ عنایت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ دوستو، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ہمیں جب بھی دینا ہے اللہ پاک ہی نہیں دینا ہے۔ دوستو، ہماری امید اللہ پاک پہ ہونی چاہیے۔ ہمارا نصیب جب بھی بدلے گا اللہ کی طرف سے بدلے گا۔ یہ نواب بھائی، یہ کوئی بابا، کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ دوستو، ایک فرمائش بھی آئی پڑی تھی، تو دوسرا نصیب کی بھی بات آ گئی ہے۔ میں نصیب کے بارے میں ایک آپ کو تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے۔ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص بیٹھے تھے، اس نے ایک دھوتی پہنی ہوئی تھی، پھٹی پرانی۔ تو موسیٰ سے کہا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، موسیٰ میری بات سنتا جا، میرا پیغام جا کے دینا اللہ پاک کو، میرا نصیب کب بدلے گا؟ میرے پاس یہی ایک دھوتی ہے، یہ پھٹی پرانی ہو جاتی ہے، جب پھر لینی پڑتی ہے، کسی دھوتی لینے کی فرصت ہوتی ہے اور کسی چیز کی فرصت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے کہنا، مجھے کچھ دینا ہے تو دے دے، میرے 4 دن اچھے گزر جائیں۔ دوستو، اس نے پیغام سنا، چل پڑے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ سے بات کی، تو اللہ پاک، آپ کا ایک بندہ بیٹھا تھا، تو اس نے ایسے کہا، تو اللہ پاک نے کہا، اس کی قسمت میں یہی دھوتی لکھ چکی ہے اور کچھ نہیں۔ موسیٰ دوست خدا کے لاڈلے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا، اللہ پاک کچھ عنایت کر دے۔ موسیٰ کی بات مان لی اللہ پاک نے۔ اس نے کہا، موسیٰ اس شخص کو جا کے کہنا، اس کی ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، جب آدھی رات ہو 2 رکعت نماز نفل حاجت شکرانے کے پڑھنا، جو مانگیں گے میں دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہو گیا۔ موسیٰ دوست خدا کے واپس آئے، اس شخص کے کہا، بھئی اللہ پاک نے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو وہ خوشی سے چل پڑا، گھر گیا، بیوی کو بتایا، بیٹے کو بتایا، تو بات تو موسیٰ کی تھی، تو وہ تو سچ ثابت ہونی تھی، تو وہ خوش ہو گیا، بھئی اس کی بات تو ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ جب آدھی رات ہوئی تو اس کی بیگم اٹھی، سب سے پہلے بیٹھی مصلی پہ، تو اس نے دعا مانگی۔ اس نے اور کوئی دعا نہیں مانگی، اس نے دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے خوبصورتی عطا کر دے، مجھے حسن و جمال دے دے۔ اللہ پاک نے حسن و جمال دے دیا۔ تو اتنی دیر میں اسی راستے سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ اس نے کہا، اس گھر میں بہت بڑی روشنی ہے، چمک ہے، تو اس گھر میں کیا ہوگا؟ اس نے گیٹ کھٹکھٹایا، دروازہ وغیرہ، تو وہی عورت آئی، بڑا اس پہ نور آ گیا تھا، حسن و جمال تھا۔ بادشاہ نے دیکھا، وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے عورت سے کہا، یہاں غربت میں پڑی ہو، آپ تو بہت حسن و جمال ہو، میں آپ کو بادشاہزادی بنا کے رکھوں گا، میرے ساتھ چلیں۔ بادشاہ کی نظر خراب ہو گئی، تو عورت کا دماغ بھی پھر آپ کو پتہ ہے،
औरत उसके साथ चल पड़ी, पीछे घोड़े में बैठ गई। उसके बाद उसका बेटा पीछे उठा, उसने मुसल्ला उठाया, जा नमाज उठाई, नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज नफिल हाजित के पढ़े। तो हाँ, उसके बाद उसका घर वाला उठा, पहले बीवी उठी, फिर उसका घर वाला उठा। घर वाला उठा तो उसने 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़े। तो उसको बीवी का पता चला माजरे का, भाई बीवी मेरी ऐसे ऐसे जो है बादशाह के साथ चली गई है। तो उसने मुसल्ले पे बैठ के, जान नमाज पे बैठ के दुआ मांगी, अल्लाह पाक इस औरत ने मेरे साथ धोखा किया है, इसको कुतिया बना दे। वो औरत वहीं घोड़े पे बैठी हुई रास्ते में जा रहे थे, वो कुतिया बन गई। तो बादशाह ने ऐसे देखा, ये तो भाई कुतिया बन गई है। उसने झटका नीचे फेंक दिया। वही कुतिया भागते भागते अपने घर के दरवाजे पे आ गई। तो उसका बेटा उठा, उसने मां को देखा, तो मेरी मां भैया कुतिया बन गई है। उसने जल्दी से मुसल्ला उठाया, जा नमाज उठाई, तो 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़े। उसने दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मेरी मां को मेरी मां बना दे, बस मेरी यही दुआ है। उसकी दुआ कबूल हो गई, उसकी मां दोबारा मां बन गई। दोस्तों, तीनों की दुआएं कबूल हो गई, तीनों की दुआएं कबूल हो गई। मगर किस्मत की बात है, वही धोती दुआएं तीनों की कबूल हो चुकी हैं, मगर वो पैसा भी मांग सकते थे, दौलत भी मांग सकते थे, कोई चीज़ भी मांग सकते थे, मगर उनके नसीब में ये धोती थी तो वो धोती में रह चुके। दोस्तों, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। इंसान को शुक्रगुजारी में वक्त गुजारना चाहिए। जो लिखा है वो मिलना है दोस्तों। मगर अल्लाह से ये भी दुआ मांगे, अल्लाह पाक इतना दे कि हम अल्लाह पाक को ना भूल जाएं, इतना दे कि अल्लाह के साथ हम कुर्बत में रहें, ठीक है ना, अल्लाह के साथ तो जुड़े रहें, ठीक है ना। मगर कुछ लोग हैं करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, मगर अल्लाह को नहीं भूलते। मगर कुछ लोग हैं थोड़ी सी दौलत आ जाए राहें जुदा हो जाती हैं। चलें दोस्तों, ये थोड़ी सी बात थी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पिछली मर्तबा मेरी एक रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है, मैं तल्ख मिजाज का इंसान नहीं हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे कोई तलखी निकल जाए, तो मुझे खुद भी अफसोस होता है। तो दोस्त वगैरह व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमें कोई फेवरेट चीज़ बताएं, खसूसी चीज़ बताएं। दोस्तों, मेरा जो ज़हन है ना, ज़हन, मैं क्योंकि किसी से फीसें वगैरह तो नहीं लेता, मैं तो किसी से चाय तक भी नहीं पीता। जो चीज़ होती है वीडियो के ज़रिए दे देता हूँ, कोई चीज़ होती है व्हाट्सएप पे वो भी मैं दे देता हूँ। मगर दोस्त बार बार कहते हैं कि हमने वीडियो नहीं देखी, हमें नंबर दे दें, हमारे पास सादा मोबाइल है, तो वीडियो में हमें समझ नहीं आई, आप जो चीज़ देंगे वो हम लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो मेहनत से बनती है। जो हम ये बोल रहे हैं ना, कि अल्लाह की तरफ से अल्फाज निकल रहे होते हैं। मैंने पिछली मरतबा आपको क्या नहीं बताया, आपको 1649 का ओपन भी बताया, 164 का क्लोज भी बताया, 61 भी बताया, 66 भी बताया। दोस्तों, जो समझने वाले हैं ना, जो कारीगर हैं इस काम में, वो तो पंगूड़े तक पहुंच गए मेरे इलाके में, ठीक है ना। उन लोगों ने पंगूड़े उठाए, 6-9 भी मार लिया, क्योंकि सऊदी आउट ऑफ कंट्री के लिए मैंने 163 दिया हुआ था आखिर में, ठीक है ना। वो लोग पंगूड़े तक पहुंच गए। भाई, दिमाग होता है इंसान का, ठीक है ना। बाकी 31-2 दिया, 31-7 दिया, किसी ने 31-2 लगाया, किसी ने 31-7 लगाया, जिसके नसीब में कुछ था। तो मुझे दोस्तों ने कहा भाई हमने इतने का लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा दिल खुश होता है, ठीक है ना, आप अपने बीवी बिच्चू में खर्च करें, ठीक दोस्तों। बाकी जो रात गई बात गई, ठीक दोस्तों मैं आज आपको ना बहुत कमाल की चीज़ दे रहा हूँ, बहुत कमाल की चीज़ दे रहा हूँ। दोस्तों, दुआ करना, अल्लाह पाक से नमाज भी पढ़ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रंग लाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है, इस डरा पे ना बहुत उम्मीद है कि अल्लाह पाक देगा। दोस्तों, हम बात करते हैं, कोई इधर उधर बात भी हो जाती है, कोई बात भूल भी जाते हैं, तो हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। दोस्तों, मैं पिछली मर्तबा जो है ना, आपको जोड़ा नहीं बता सका। मेरे जहन में भी आया,
भाई जोड़ा लगना चाहिए, क्योंकि मैंने 4 का जोड़ा भी ऊपर थंबनेल पे रख दिया था, मगर मेरे ख्याल में नहीं आया, मैं ये बात नहीं कर सका जोड़े की, मुझे जोड़ा भी नज़र आया, मगर जोड़ा जो ये मुझे 4 का नज़र आया, मगर इसके साथ 6 भी बनता था, ठीक है ना। तो बस मैं नहीं बता सका दोस्तों, मन नसीब की बात होती है दोस्तों। बाकी दोस्तों बुर्ज हमल वालों का सवाल है, बुर्ज हमल वालों के लिए ये 6ठा महीना है, ठीक है ना, ये 5वां महीना ख़त्म हो रहा है, 6ठे महीने में उनका इंशाअल्लाह उरूज होगा, इंशाअल्लाह बुर्ज हमल वालों के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपको पिशावर में 8-3 का ओपन दे रहा हूँ, 8 और 3 का ओपन दे रहा हूँ। दूसरा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मुझे 7 का 7 के क्लोज का इशारा मिला है, ख्वाब में मिला है, 7 के क्लोज का मुझे इशारा मिला है। वैसे जो जैचे के हिसाब से है 1-6 है, जो मुझे इशारा मिला है वो 7 का मिला है दोस्तों। दोस्तों मैं ये आपको बात करता चलूँ, आपने 8-7 और 3-7 का मुझे डाउट है, मगर 8-7 जो है ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। एक आप 8-7 ले लें, इसको तो मत छोड़ें। मैं आपको बात बताता हूँ आगे चल के, थाईलैंड की भी बात बताता हूँ इसी में। और मैं आपको दे रहा हूँ 36 का आंकड़ा, ये इसका वज़न जो है, इसका वज़न ऊपर नहीं लग रहा, इसका वज़न मुझे नीचे लग रहा है थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेना और नीचे भी लेना, और लेना भी ज़रूर लेना, ठीक दोस्तों। 36 के साथ मैं फिर दोबारा जब वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको एक ही सेंटर दूंगा और इसकी एक फोरकास्ट भी दूंगा। तो 87 के साथ भी मैं आपको 2 दिन पहले एक ही सेंटर दूंगा, एक ही पकड़ दूंगा, आखिरी हर्फ, ठीक दोस्तों। बाकी ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ 8 का हर्फ दोस्तों, ये यहाँ भी लग सकता है और थाईलैंड में भी लग सकता है, इसका ख्याल रखना। ये 87 का आंकड़ा यहाँ भी लग सकता है, ये यहाँ पे नहीं लगा तो ये थाईलैंड में लग सकता है। ये आंकड़ा 87 का बहुत पावरफुल आंकड़ा है दोस्तों, इसको आपने छोड़ना नहीं, आपने लाजमी लेना है। तो मेरे दोस्त सऊदीया से आए हुए हैं, वो भी बहुत बड़े ठाकुर हैं, तो वो लेते हैं गेम वगैरह, मगर ये कुछ लोग होते हैं शौकीन होते हैं, माल पैसा भी होता है, तो फिर भी ये शुगल करते हैं, मगर उनके पास जुरत है तो वो 7 का क्लोज भी लें, 8 का ओपन भी लें, इसमें भी लें, उसमें भी लें, कुछ ना कुछ बन जाएगा, और 36 का आंकड़ा भी लें। और दोस्तों इसमें मेरे प्रोग्राम में कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जो पढ़े हुए नहीं, उनके पास सादा मोबाइल होता है। सबसे पहली मेरी उनसे अर्ज़ है कि वो इस्तिखारा वज़ैफ़ करें, इस्तिखारा वज़ैफ़ करके वो नंबर जो आए वो नंबर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जिसको तजर्बा होता है वो बना के ले लेता है। बाकी आपसे भी मेरी अर्ज़ है कि उन लोगों की, उन दोस्तों की आप खिदमत किया करें, उन दोस्तों को आप बता दिया करें, कोई चीज़ भी हो आप बता दिया करें। आप दूसरों के साथ नेकी करोगे, अच्छाई करोगे, अल्लाह पाक आपके साथ करेगा। दोस्तों ये 2 चीज़ें आपको मैं बता के जा रहा हूँ, इनाम लग भी जाए दोस्तों, किसी गरीब को देखना, किसी मुस्तहिक को देखना, किसी के घर में रिश्ता वगैरह बैठा हो उसको कुकीज़ माल वगैरह जैसे होता है जहेज़ वगैरह का, वो लेके देना। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत मजबूत तरीन चीज़ें दे के जा रहा हूँ, एक 36 का आंकड़ा और एक 8-7 का आंकड़ा। ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों, ये लग सकती हैं। बाकी मेरा दावा चैलेंज तो नहीं है, मगर मुझे इस पे भरोसा बहुत है, तवक्को बहुत है कि ये चीज़ें लगनी चाहिए दोस्तों। बाकी मैं आऊँगा इंशाअल्लाह 2 दिन पहले, मैं 1-2 चीज़ें आपको और भी बताऊँगा, तो इनके साथ सेंटर वगैरह भी बताऊँगा। इंशाअल्लाह मैं आपको पंगूड़े तक ले जाऊँगा। बाकी समझना ना समझना आपका काम है दोस्तों।
باقی اس 8 کا اوپن نہیں بھولنا آپ نے، 7 کا کلوز نہیں بھولنا۔ اس میں بھی کھیلیں، پشاور میں بھی کھیلیں اور تھائی لینڈ میں بھی کھیلیں۔ جو 36 ہے، 36 کا آنکڑا اس پشاور میں کہتا ہوں لگ کے جائے۔ ٹھیک دوستو، فرسٹ نہیں لگے تو سیکنڈ میں لگ کے جائے، یہ بھی آپ تھوڑا تھوڑا لے لینا۔ باقی میں سنٹر بتاؤں گا انشاءاللہ، آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ٹھیک دوستو، میں اس وقت اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ ٹھیک دوستو، اس وقت اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔